So hello students, in this video lecture series of current trends in digital commerce for MCOM 4th sem. Today we are going to learn the application of e-commerce for the various economic sector. In our previous lecture I explained you the various economic sectors in India. So there are total 5 sectors, which is primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary. So how the e-commerce is applied in all these areas in India. Okay, so the application of e-commerce are used in various business areas such as a retailer, wholesaler and manufacturers. The most common e-commerce applications are online marketing and purchasing, retail and wholesalers, finance, manufacturing, online auctions, e-banking, online publishing and online booking. So let us have a look one by one on each applications of each area, how the e-commerce is applied in this area. So first we are going to learn that online marketing and purchasing. So online marketing means, for marketing we need to collect the data about the customer, about the customer behavior. Okay, then and then only you can decide what to produce and how to produce and at what amount you have to produce the goods. Okay, because अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट में कस्टमर की चॉइस क्या है तो आपके प्रोडक्ट को वो लाइक करेगा नहीं करेगा. लेकिन अभी कैसा है, अभी ये जो मॉडर्न इरा है इसमें अभी पहले क्या होता था, प्रोडक्ट बनाया जाता था, उसका एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को दिया जाता था और फिर लोग उसको यूज़ करते थे. अभी ऐसा नहीं है, अभी तो कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में. हर दिन एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होता है. तो आपको पहले कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को मालूम करना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर डैट यू नीड टू collect the data regarding the customer behavior, preferences, needs and buying pattern if possible through web and e-commerce. So क्या होता है कि ऑनलाइन में इंटरनेट के थ्रू अभी बहुत सारे जो है वो कंपनी सर्वे करती है और वो सर्वे के थ्रू कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स एंड बाइंग पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है और उसके बेसिस पर आप ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है. सो ये जो डेटा कलेक्ट होता है, दिस हेल्प्स मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज प्राइस फिक्सिंग, नेगोशिएशन, प्रोडक्ट फीचर एनहांसमेंट एंड रिलेशनशिप विद द कस्टमर. सो ये जो डेटा कलेक्ट होता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा विच यू हैड कलेक्टेड, सो यू कैन मेक अ डिसीजन फॉर द price fixation. Now you can negotiate that price. You can modify the features of your product. Okay, and you can do the more better relationship. You can maintain the better relationship with the customer. So online e-commerce is very much helpful for conducting such activities in the business. Okay, now next is manufacturing. So e-commerce is also used in the supply chain operation of the company. Some companies from an electronic exchange by providing together buy and sell of goods, trade market information and run back office information such as inventory control. Now see what happened. There are so many businesses are there, they are using online softwares. Means if you want, suppose अभी आपने हर किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग तो की है, सो आपने ऑनलाइन स्टोर देखा हुआ है. सो जैसे अगर हम अमेज़ॉन में जाते हैं तो उनका ऑनलाइन स्टोर है. सो ऑनलाइन स्टोर में अगर आप बाय करते हो तो आपको पता चलता है कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन स्टॉक और नॉट. इफ़ नॉट तो आउट ऑफ स्टॉक करके वहाँ पे लिखा रहता है. ओके, सिमिलरली जैसा कस्टमर को पता है वैसे ही सेलर को भी पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना प्रोडक्ट है और कितना नहीं है, सो दैट ही कैन मेंटेन हिज इन्वेंटरी वेरी वेल. सो वो अपना स्टॉक को बराबर मेंटेन रखेगा. तो इसमें ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ई कॉमर्स के जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स है जो ऑनलाइन थ्रू चलते हैं, तो ये सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा
मायने रखता है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर में अभी एक सप्लाई चेन में गवर्नमेंट ने ई नाम, दैट इज ई नाम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके एक साइट दी है, जिसमें फार्मर अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रोडक्ट से लेकर यानी एग्रीकल्चर से लेकर सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। इवन वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वहाँ सेल भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो स्टॉक भी देख सकते हैं, वहाँ पे उसका प्राइस फिक्सिंग भी होता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल on that platform. So in such way e-commerce is helpful. So these speed up the flow of raw material and finished goods among the member of the business community. So ये क्या होता है, इससे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, क्या चाहिए, कितना आपको लगेगा, यानी हाँ ये हमारे पास इतना स्टॉक है और मार्केट में उसकी डिमांड इतनी है, तो हमें अभी और इतना रॉ मटेरियल हमें रेडी रखना है सो डैट वी कैन इजीली made a finished good. Okay, so various issues related to strategies and competitive issues limited the implementations of business models. Company may not trust their competitor and may fear that they will lose trade secrets if they participate in the mass electronic exchange. So इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज भी है। बहुत सारे लोग है ना अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ओपन नहीं रखते, वो थोड़ा सा क्लोज करके रखते हैं, वो जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वो उसके लिए, क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिटर आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है तो वो क्या करेगा, वो अब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड की बात कर रही हूँ मैं, सो वो क्या करेगा, आपके जो सीक्रेट्स है उसको वो क्या कर लेगा, वो सीक्रेट्स मालूम करके वो ही अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। सो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैन्युफैक्चरर के लिए कि जहाँ पे रॉ मटेरियल का सप्लाई, देन फिनिश गुड्स का सप्लाई या जो भी है, यानी परचेस एंड सप्लाई हम दोनों बोलेंगे रॉ मटेरियल के लिए, तो कंपनी इजीली कर सकती है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिटेलर एंड होलसेलर। सो आपके लिए कोई नया नहीं, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में पहले से गए हो। सो अभी सभी लोगों ने अपनी शॉप ऑनलाइन करके रखी है, सभी लोगों ने ई रिटेलरिंग, ऑनलाइन रिटेल इज द सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक store that are designed using electronic catalogs and shopping cart मॉडल। तो अभी क्या होता है कि हम लोग एक कार्ट में अपने जो जो हमें पसंद आता है वो डाल देते हैं, कार्ट में डालने के बाद में हम चेक करते हैं, फिर उसका पेमेंट करते हैं और वो चीज़ आपके घर में आ जाती है। सो सिमिलरली जैसा बिजनेस टू कंज्यूमर है वैसे बिजनेस टू बिजनेस भी होता है। तो रिटेलर एंड होलसेलर के लिए भी ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके लिए लोगों ने वेबसाइट बना के लिए रखी है। सो बहुत सारे वेब पोर्टल्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट डेट ऑफर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट वन इंटरनेशनल लोकेशन। और इससे क्या हो गया, आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो गया है बिजनेसेस के लिए। Once you launch your website, then anyone from the world can attain your website, can reach at your website to know what is there. Okay, so वहाँ पे क्या है ये जानने के लिए, एंड आपका कोई भी कस्टमर किसी इंडिया पूरे वर्ल्ड में से किसी भी कोने से आपको अप्रोच कर सकता है। So it attract the customer and the seller into the virtual page through the web browser. Now finance. फाइनेंस कंपनी आर यूजिंग ई कॉमर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। अभी तो ई कॉमर्स आप देखते होगे, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट सब ऑनलाइन चल रहा है सब। सो ये सारी चीज़ें सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स ये ई कॉमर्स के थ्रू ही तो चल रहा है। तो कस्टमर कैन चेक द बैलेंस देयर सेविंग्स एंड लोन अकाउंट्स। नाउ ई बैंकिंग, व्हाट इज ई कॉम बैंकिंग? बैंकिंग आर प्रोवाइडिंग देयर कस्टमर e-passbook facility, then their payments, their online payments. Okay, they are receivers, receiving the payments through online. तो अभी आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल भी रहा है, आप पे भी कर पा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें ई फाइनेंस में क्या हो गई है, पॉसिबल हो गई है। सो कस्टमर कैन चेक द बैलेंस ऑफ देयर सेविंग एंड लोन अकाउंट, transfer money to their other accounts and pay their bills through online banking and e-banking. So other application of e-commerce is online stock trading. जैसा कि मैंने कहा स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा ऑनलाइन चलता है। Many websites provide access of new charts, information about the company profile and analyst rating on the stock. Now the next is auctions.
So customer to customer e-commerce is directly selling of goods and services among the customer. Now अभी यहाँ पे कोई सेलर नहीं, कस्टमर टू कस्टमर. आपने एक ऐड देखी होगी कि quikr.com की एक ऐड आती है ना, तो और एक आती है जिसपे हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट उस साइट पर डाल सकते हैं. सो जिसको भी वो चीज़ सेकेंड हैंड खरीदनी है तो वो वेबसाइट पर जाता है, लोकेशन डालता है और उस लोकेशन पर जो सेलर्स है उनसे वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है. यानी यहाँ पे आपको कोई भी मीडिएटर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, आप डायरेक्टली अपनी चीज़ सीधा कस्टमर को बेच सकते हैं. सो यहाँ पे इट ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस दैट इन्वॉल्व बिडिंग. So bidding is a special type of auction that allows prospective buyers to bid for an item. So यहाँ पे आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए हम जैसे टेंडर्स वगैरह भरते हैं या फिर हम कोटेशन मंगवाते हैं, उस तरह से भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन कंपनी गिव द कस्टमर्स an opportunity to quote the price for the seat on a specific route on the specified date and time. सो देखिए बहुत सारे, हाँ कितने सारे ऑनलाइन पर कितने सारे फ्लाइट्स अवेलेबल है, लेकिन हर फ्लाइट का रेट अलग अलग है. डेस्टिनेशन वही है, अगर मुझे अमेरिका जाना है तो मैं देखूंगी तो फिर, लेकिन अलग अलग फ्लाइट्स अलग अलग रेट वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है. सो मुझे जो कन्वीनियंट लगता है वो मैं वहाँ पे खरीद सकती हूँ. तो इसे ऑनलाइन ऑक्शंस कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बायर एक होता है. नाउ ई बैंकिंग, जैसा कि पहले कहा है, ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट एनेबल द कस्टमर of a financial institute to conduct financial transaction on website operated by the institution. Online banking is also referred as internet banking, e-banking, virtual banking and by other terms. सो ऑनलाइन बैंकिंग का भी बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारा. मैंने कहा आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलिए, वो बैंक अपना एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर बोलता है कि ये आप एप्लीकेशन है हमारा, ये हमारा ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिए. सो यू आर अनेबल टू check your account balance, you are unable to pay your payments, you are unable to receive your payments. So everything is available in e-banking. Now online publishing. So electronic publishing, as referred to as e-publishing or digital publishing, includes the digital application of e-book, digital magazines and development of digital and digital libraries and catalogs. So अभी everything is available, means आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप न्यूज़पेपर, आपको मैगजीन पढ़ना है, ये मैगजीन अवेलेबल है, ये बुक्स अवेलेबल है, डिजिटल मैगजीन्स अवेलेबल है, everything is available on web portal. So this, and by paying some nominal amount you can purchase the books also, e-books also. So all things are available in e-commerce. Now online booking, जैसा अगर मुझे कोई टिकट खरीदना है, फिर वो सिनेमा हॉल की हो या बस टिकट हो या ट्रेन का रिजर्वेशन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. सो एन इंटरनेट बुकिंग इंजिन, दैट इज IBE, is an application which helps the travel and tourism industry support reservation through the internet. It helps the consumer to book flights, hotels, है ना. trivago.com एक ऐड आती है ना, आपने देखा, जिसमें होटल की बुकिंग हम कर सकते हैं, हॉलीडे पैकेज ले सकते हैं, इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज ऑनलाइन, हर चीज. ना एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑनलाइन. ना सी इन दिस पैंडेमिक, है ना, जैसे कोरोना जब से आ गया है, सब लोग घर पे बैठे, बट इज द ट्रांजेक्शन स्टॉप? क्या है, बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप हो गई है? नहीं. उन्होंने क्या किया, सब चीज़ ऑनलाइन की. आपका टीचिंग भी ऑनलाइन हो रहा है, एवरीथिंग. यू आर पेइंग फीस to your college online admissions हो रहे, everything is done on online portal, so done through internet. So this is much needed application for the aviation industry and it has become one of the fastest growing sales channels. So ये ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जो है, ये आपको बहुत हेल्प करती है. तो आपने देखा कि अभी अगर आपको कोई भी चीज़, यानी आगे आपको जो भी करना है, जो भी आप कंपनी में काम करोगे, वो कंपनी के सारे काम आपको ऑनलाइन ही करने हैं.
don't forget. So you must know the online platform, how the business are doing their transactions on online platform by using internets, how the business conducting their activities, how the business performing their transactions, everything you must know. And now the business are demanding more and more software to IT sectors, to इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि भैया हमें और अच्छे सॉफ्टवेयर्स दे, एंड डे बाय डे दे आर डेवलपिंग, एंड डे बाय डे दे आर demanding more and more improvement in their softwares. So user friendly software available hai, you are just go on that online software and you have to just click on that, so you will get all the things. मीन्स अगर आपको पे करना है तो पे पर बटन दबाइए, आपको अगर टिकट बाय करना है तो you have to just click on buy button, you can buy the things. So everything is available and online platform. So I hope you understand all these applications of e-commerce. Soon I will come with the another topic. So here I am declare that your first unit is completed. Thank you.